بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سجاد زیدی اور آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امریکہ سے ایرانی مظاہرین کو آنے والی امداد روک دی گئی ہے۔ یہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کارروائی میں کیا گیا ہے۔ نہ صرف امداد ضبط کی گئی ہے بلکہ ملک گیر آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 629 ایسے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو غیر ملکی جاسوس کے طور پر کام کر رہے تھے، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے، یعنی وہ ایران میں ان ممالک کے ایجنٹ کے طور پر سرگرم تھے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت اپنی کابینہ کے اجلاس کے بعد امریکی صدر کی جانب سے ایران کے خلاف سخت کارروائی اور ممکنہ حملے کی دھمکی کے سامنے آنے کے بعد ایران نے بھی سخت جواب دیا ہے، جس میں ایران کی سپریم سیکیورٹی کونسل کے سربراہ جناب علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کے اصل قاتل ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں اور ایرانی عوام ان کو اچھی طرح سے پہچان لیں اور یاد رکھیں گے۔ یہی نہیں بلکہ عرب ممالک بالخصوص قطر اور سعودی عرب نے بھی ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کی سخت مخالفت کی ہے۔ نتیجتاً امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کردہ ایران کے خلاف ممکنہ امریکی کارروائی کو بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ آئیے اس صورتحال پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایرانی حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ کے پاس کون سے آپشنز ہیں اور کیا امریکہ علاقائی رہنماؤں کی مخالفت کے باوجود ان آپشنز پر عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ ہم اس سوال کا جواب بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کابینہ کے اجلاس صدارت کرنے کے بعد امریکی صدر نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اور انہوں نے ٹروتھ سوشل پر ایک پیغام بھی شیئر کیا۔ یہ پیغام اہم تھا کیونکہ انہوں نے ایرانی عوام کو مختلف اداروں پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے ایرانی مظاہرین کو حکومت کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھنے کی ترغیب بھی دی۔ مزید برآں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو یقین دلایا کہ وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں، یہ کہتے ہوئے کہ امریکی امداد جلد پہنچ جائے گی۔ امریکی امداد کے اس معاملے نے کئی طرح کے سوالات کو جنم دیا ہے۔ آیا امریکی فوجی امداد کارروائی کے لیے ہے یا امریکہ دوسرے ذرائع سے ایرانی مظاہرین کی حمایت کرے گا؟ یہ وہ صورتحال ہے جس کا میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ امداد کے روکے جانے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ ایران کے حوالے سے اس وقت امریکہ کے پاس موجود آپشنز کے حوالے سے گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے دوران سائبر حملوں کے آپشنز پر بڑے پیمانے پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایران میں مظاہرین کی حمایت یا مدد کے لیے متعدد آپریشنز میز پر موجود ہیں اور ایران کے خلاف فوجی کارروائی بھی ایک اعلیٰ سطحی آپشن پر غور کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے ایران پر امریکی حملے کے امکان کو رد نہیں کیا بلکہ اسے آپشن نمبر 1 قرار دیا ہے۔ اس کے بعد مختلف امریکی تھنک ٹینکس اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے جیسے لنڈسے گراہم اور ماریو نوفل اور دیگر نے ایران کے حوالے سے مختلف اعلانات جاری کیے ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران پر امریکی حملہ بہت جلد ہونے والا ہے اور اس حملے کے لیے کہا گیا تھا کہ اس وقت تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیگو گارشیا میں امریکی فوجی اڈے پر B-2 بمبار طیارے بھی بھیج دیے گئے ہیں اور اسی طرح الحدید ایئر بیس پر ایئر لفٹ ایئر ایندھن بھرنے والے ٹینکرز بھی تعینات کر دیے گئے ہیں اور قطر میں بڑی تعداد میں فوجی اڈے پر فوجی تیاری بھی کر لی گئی ہیں۔ خلیج کے مختلف ممالک میں اس کے ساتھ ہی اسرائیلی فضائیہ کے ہائی الرٹ ہونے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے اس مرحلے کے انکشاف کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا اور حفاظتی اقدامات مزید سخت کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر تیار کیا گیا ہے الرٹ حالت پر اور اسرائیلی فضائیہ کو کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے ریڈ الرٹ پر رکھا گیا ہے، جس کے بعد خطے میں جنگی سائرن بجنے لگے۔ ناظرین، پاکستان نے ایرانی حکومت کو یقین دلایا ہے کہ وہ ایران کی صورتحال سے لا تعلق نہیں ہے اور وہ ایران اور ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک بات چیت کی اور انہیں پاکستان کی طرف سے حمایت میں توسیع کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان نے کہا کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی
फौजी कार्रवाई की मुखालफत करता है और इसी तरह कतर और सऊदी अरब की जानिब से भी अहम बयानात जारी किए गए हैं और ख़ास तौर पर चीन की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ईरान पर हमले के हवाले से ये बयान, जिसमें ये भी वाज़ेह हुआ कि खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक खा चीन, रूस, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान या इराक इस सूरत हाल की हमायत नहीं करते। इन सब ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की शदीद मुखालफत का इजहार किया और ये कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि फौजी कार्रवाई किसी भी मुल्क की हुकूमत को तब्दील करने का बेहतरीन जरिया नहीं है। इसका बेहतरीन तरीका ईरानी अवाम फैसला कर सकते हैं कि ईरान पर हुकूमत कौन करेगा। अमेरिका को इस जगह जाकर कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है। और अब यहाँ इमदाद के हवाले से सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो जाती है कि अमेरिका ने किस किस्म की इमदाद ईरानी मुजाहिरीन को ऑफर की है। नाजरीन, ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से जारी करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान ने स्टारलिंक डिवाइसेस की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ ली है जो पड़ोसी मुल्क से ईरान में स्मगल की जा रही थी। ये पड़ोसी मुल्क नाजरीन पाकिस्तान नहीं है, ना ही ये तुर्की है और ना ही आर्मीनिया या इराक है, बल्कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के पड़ोस में कौन सा ऐसा मुल्क है, ये कौन सा पड़ोसी मुल्क हो सकता है जहां गुज़श्ता रोज एक अमरीकी तैयारा बगराम एयर बेस पर उतरा था। ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि बगराम एयर बेस पर अमरीकी तैयारों के साथ एक बहुत बड़ी खेप उतारी गई थी। ये वही खेप है जिसे ईरान स्मगल करने की कोशिश की गई थी। ईरान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बरवक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में स्टारलिंक डिवाइसेस और बड़ी तादाद में एडवांस जनरेशन के टेलीफोन कब्जे में ले लिए। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक खेप में 3000 से ज़्यादा स्टारलिंक डिवाइसेस और इतनी ही बड़ी तादाद में चार्जर्स और दीगर अपलिंकिंग टूल्स शामिल थे। नाजरीन, ईरानी हुकूमत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक तेज कार्रवाई में इन आलात को कब्जे में ले लिया है। इससे पता चलता है कि अमेरिका एलॉन मस्क के स्टारलिंक के जरिए ईरानी अवाम को इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का इरादा रखता है। मजीद बरआं ईरानी हुकूमत ने अपनी इंटेलिजेंस की मदद से इंटरनेट सर्विस के लिए स्टारलिंक के सैटेलाइट सिग्नल्स को भी बंद कर दिया है, यहाँ तक कि उन्होंने इन सिग्नल्स को जाम कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट फराहम करने वाले निज़ाम को ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर की है जिसमें ईरान के साथ गुज़श्ता 108 घंटों से इंटरनेट की सहूलियात की मुकम्मल बंदिश की तस्दीक की गई है, यानी ईरान में कोई इंटरनेट सर्विस दस्तयाब नहीं है। ईरानी हुकूमत ने भी मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है, खासतौर पर वो लोग जो यहाँ गैर मुल्की ज़राए के कहने पर काम कर रहे हैं। नतीजे के तौर पर ईरानी हुकूमत ने 629 अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक की है, जिस पर इसराइल और अमरीका से मुंसलिक अस्करियत पसंद ग्रुपों से रवाबत का इल्जाम है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस के सरबराह ने 629 अफराद की गिरफ्तारी का ऐलान किया है। हालिया हफ्तों के मुजाहिरों के दौरान ईरानी हुकाम ने अमरीका और इसराइल पर मुल्क में बदअमनी फैलाने का इल्जाम लगाया है। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि इमदाद का ऐलान अपनी एक पोस्ट में किया, इसका मतलब है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए स्टारलिंक के जरिए ईरान में डिवाइसेस स्मगल करने की इब्तदाई कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। इसका मतलब ये है कि ईरान ने अमरीकी इमदाद की पहली खेप अपने कब्जे में ले ली है, जो ईरान के लिए एक अहम कामयाबी है। मजीद बरआं मेरा ख्याल है कि ईरान को इन पड़ोसी ममालिक से भी आगाह होना चाहिए जो ईरान के अंदर जासूसी नेटवर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। और इन 629 अफराद का मैंने आपसे जिक्र किया है, इन अफराद में से एक बड़ी तादाद अफगान शहरियों की है और इस बात की तस्दीक की गई है कि इनमें से 80 से ज़्यादा अफगान शहरी हैं और इनके साथ तकरीबन 19 हिंदुस्तानी शहरी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये एक वसी खित्ते के अंदर प्रॉक्सी जंग का अहम सबूत है। मजीद बरआं ईरान ने इन मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की है जो लड़ाई, लोगों को मारने और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। ईरान ने भी इन में से चंद अफराद को फांसी देने का ऐलान किया है। ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया ऐलान है। इस बयान में उन्होंने ईरानी हुकूमत को खबरदार किया कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी देने की धमकियों पर अमल दरामद किया, यानी इन्हें फांसी दे दी गई, तो इन्हें बिलाजवाज और इंतहाई सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये अमरीकी सदर का एक नया ऐलान है। तेहरान ने अमरीकी रद्द अमल को फौजी मुदाखलत तलाश करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन
نے बैन अल-अक़वामी गम व गुस्से को जन्म दिया है। इंसानी हकूक़ के एक ग्रुप का कहना है कि हलाकतों की तादाद 200 तक पहुंच सकती है और ये ईरानी हुकूमत के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। एक ईरानी एहलकार ने मंगल के रोज़ बरतानवी खबरसां एजेंसी राइटर से बात करते हुए इंकशाफ किया कि मुल्क में जारी शदीद एहतजाज और सिक्योरिटी क्रैकडाउन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों समेत तकरीबन 2000 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। फ्रांसीसी खबर एजेंसी एफपी के मुताबिक ईरान की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मिशन ने एक्स पर एक बयान में इस अज़म का इजहार किया कि वाशिंगटन की प्ले बुक दोबारा नाकाम हो जाएगी। पोस्ट में कहा गया है कि ईरान के बारे में अमरीकी तासरात और पॉलिसियों की जड़ें हुकूमत की तब्दीली में हैं और पाबंदियां, धमकियां, इंजीनियर्ड ड्रामे और अफरा तफरी फौजी मुदाखलत का बहाना है। ईरानी अहकाम का इसरार है कि जुम्मा की रात से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों के बाद उन्होंने मुल्क का कंट्रोल दोबारा संभाल लिया है। इंसानी हकूक़ के ग्रुपों ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुजाहिरीन को गोली मारकर हलाक कर रहे हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट के साथ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है और ये तमाम कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अकाउंट्स में बताया गया है कि भारी मशीन गनों से लेस फौजी दस्ते ईरान की सड़कों पर मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात दिखाई गई हैं और कहा जा रहा है कि ये भारी मशीन गन्नें मुजाहिरीन को डराने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। ये इस तरह के सोशल मीडिया रिपोर्ट्स यूरोप से आने वाले प्रोपेगेंडा है या इल्ज़ाम है। अब इस सूरत हाल में मैंने आपके सामने जिस सवाल का जिक्र किया है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है कि अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या अमेरिका एक्शन लेगा। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे नज़दीक ये मुमकिन नहीं था कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ मुजाहिरीन के जरिए गिराई जाए। दुरुस्त बात यह है कि इन मुजाहिरीन ने हुकूमत की अमलदारी को चैलेंज किया है और उन्होंने यकीनन ईरानी हुकूमत को कमज़ोर किया है। ताहम ईरानी हुकूमत के फौरी ज़वाल का इम्कान नहीं है। इसी तरह अगर ये दुरुस्त है कि भारी मशीन गन्नें मुख्तलिफ ट्रकों पर नस्ब करके ईरानी शहरों में मुख्तलिफ मुकामात पर तानियात की गई हैं, तो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ईरानी हुकूमत और ईरानी सरकारी फौज अमारतों पर कब्जे की किसी भी कोशिश को नाकाम बना देंगी। इसी वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट के जरिए मुजाहिरीन को इन तनसीबात पर कब्जा करने की तरगीब दी है। उन्होंने कहा है कि जब हुकूमत अहम सरकारी इदारों का कंट्रोल खो देगी तो हुकूमत के पास हुकूमत करने का इख्तियार खत्म हो जाएंगे। अब कुछ जैसे कि लिंडसे ग्राहम, म्योनोफल और दीगर का ख्याल है कि अमेरिका ने बुनियादी तौर पर मौजूदा ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक कार्रवाइयां शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इससे पहले इब्तदाई मरहले के तौर पर एक बड़े साइबर हमले की मनसूबाबंदी की गई है। ये साइबर हमला मौजूदा ईरानी हुकूमत के राब्ते में खलल डालेगा। जनाब आयतुल्लाह खामनाई, जनाब मसूद पशकियान, जनाब अली लारिजानी और दीगर साथियों के दरमियान राब्ते को मुअत्तल कर देगा और हुकूमत के जो स्पेशल नेशनल गार्ड हैं उनके अहकामात की रवानी को रोक देगा। इसके बाद ही मुजाहिरीन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी। तहाँ मुझे यकीन नहीं है कि महदूद पैमाने पर फौजी ऑपरेशन या फिजाई हमले ईरानी हुकूमत के खात्मे का बाइस बनेंगे। हाँ, अगर ईरानी हुकूमत के जवाल का इम्कान है तो इसके लिए इसी इनकलाब की जरूरत है जो 1979 में हुआ था, जब इमाम खमीनी तेहरान के हवाई अड्डे पर उतरे थे और उस वक्त के ईरानी शहंशाह रजा शाह को भागने पर मजबूर किया गया था। अगर ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो जाए और रजा शाह पहलवी न्यूयॉर्क से हवाई जहाज में सवार होकर दोबारा तेहरान के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरे और लाखों लोग वहां मौजूद हों, तो ऐसी सूरत हाल में ईरानी हुकूमत के खिलाफ इनकलाब का रास्ता हमवार हो सकता है। फौजी हमलों, फौजी छापों या साजिशों के जरिए हुकूमत को गिराना मेरा ख्याल नहीं है। मुझे यकीन है कि इस तरह के इक़दामात का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी यकीनी है कि जनाब आयतुल्लाह खामनाई को पकड़ने की खातरखा कोशिशें की जा रही हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान गुज़श्ता 12 रोज़ा जंग के दौरान भी इसराइल ने जनाब अली खामनाई को निशाना बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब देखना यह है कि अमेरिका इन पेश रफ्तों के पेश नज़र क्या फैसला करता है, खास तौर पर इलाकाई रहनुमाओं की मुखालफत की वजह से। क्या वो फौजी कार्रवाई करता है या पसोपेश से काम करता है। अगरचे फौजी कार्रवाई वाज़े तौर पर करीब है और अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता इत्तफाक राय सामने नहीं आया कि ये कब होगा, ताहम एक हंगामा बरपा हुआ है और ये देखना बाकी है कि इस हंगामे का क्या नतीजा निकलता है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।